Hello students, good morning all of you. How's you all? Good. Okay beta, I'm also good. Welcome again to your online SST class. As you all know, we are learning lesson 14. Yes, lesson 14, Forest of India. Lesson 14, Forest of India. So today we are going to do exercise of this chapter. So for the exercise, open your book, page number 86. Page number 86. So first A exercise is given. Choose the correct answer and fill in the blanks. आपको क्या करना है? आंसर चूज करना है और आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ उसे फिल करना है. Okay students, so first is there are dash types of forests in India. So first question is there are blank types of forests in India. Four options are given. First is 3, 5, 4, 7. How many types of forests found in India? Yes students. So 5 types. So you take on the B option 5 and write 5 in blank also. Okay students, I am write here answer only. Question you read in your book. Second is the Jim Corbett National Park is in the state of. Jim Corbett National Park जो है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? So four option are given. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय. So which is right answer? Jim Corbett National Park is situated in the Uttarakhand. So you think on the A option. Uttarakhand. Okay. Jim Corbett National Park कहाँ situated है? In the Uttarakhand state. Okay. The third question is the Bharatpur Wildlife Sanctuaries is in the state of. Bharatpur Wildlife Sanctuaries जो है वो कौन से स्टेट में? फोर ऑप्शन आर गिवन. राजस्थान, बिहार, पंजाब, झारखंड. तो भरतपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? राजस्थान. सो ए ऑप्शन इज राइट, राजस्थान. ओके, सो यू टेक द ए ऑप्शन, राजस्थान. नेक्स्ट इज नंबर 4 इज द सुंदरबंस हैज ब्लैंक फॉरेस्ट. सुंदरबंस जो होते हैं उसमें कौन से फॉरेस्ट होते हैं? सो फोर ऑप्शन आर गिवन. मैंग्रोव forest, evergreen forest, deciduous forest and thorn forest. So Sundarbans has कौन से forest होते हैं? Mangrove forest. So A option is right. कौन से forest होते हैं? Mangrove forest. Okay, Sundarbans में कौन से forest होते हैं? Mangrove forest. Next number 5 is thorn forest is also known as blank forest. So thorn forest को हम और कौन से नाम से जानते हैं? फोर ऑप्शन आर गिवन. फर्स्ट इज डेजर्ट, सेकंड वन इज एवरग्रीन, कॉर्निफरस एंड डिसिडियस. सो विच थॉर्न फॉरेस्ट को हम और कौन से नाम से जान सकते हैं स्टूडेंट्स? डेजर्ट फॉरेस्ट. डेजर्ट फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज थॉर्न फॉरेस्ट. सो ए ऑप्शन इज राइट. सो डेजर्ट फॉरेस्ट. ओके, सो ए ऑप्शन इज राइट. You take the right answer, okay, and write this answer in the blank. Now come on the next exercise. Next exercise is answer these questions. So answer these questions is answer these questions. So first question is define forest. डिफाइन फॉरेस्ट. आपको क्या करना है? फॉरेस्ट को डिफाइन करना है. डिफाइन फॉरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक लार्ज एरिया होता है किसका? लैंड का, जो कि किससे कवर्ड होता है? ट्री से. सो व्हाट इज फॉरेस्ट? ए लैंड, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज. Covered with trees, known as forest. Known as
next is number 2. Number 2 is name the different kinds of forest found in India. आपको नेम बताने डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. So first is evergreen forest. Second one is deciduous forest. And third is desert forest. And fourth is tree forest. And next fifth is coniferous and mountain forest. Coniferous forest, जैसे इसे माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से भी जान सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर 5 काइंड ऑफ फॉरेस्ट वी फाउंड इन इंडिया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3. Question number 3 is write 3 uses of forest. Write 3 uses of forest. Forest के आपको 3 uses बताने हैं. तो सबसे पहले क्या देता है हमें? Forest provide us with nuts, berries and fruits. तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे forest provide us with nuts, berries and fruits. Okay, next is number 2 is वो क्या करते हैं? they provide us with hardwood and softwood. They provide us with hardwood and softwood. हमें wood provide करते हैं, hardwood and softwood. Both types of wood they provide us. Okay. And next is वो क्या provide करते हैं हमें? They provide medicine, forest and herbs. Forest provide medicinal forest. Yes, क्या करते हैं ये हमें मेडिसिनल जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं. मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स. ओके, सो स्टूडेंट्स 3 यूजेस आपको बताने हैं फॉरेस्ट के. ओके, यू कैन राइट फॉर वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हो हमें? दे प्रोवाइड लाइक गम, रबर, रेजिन, कॉर्क एंड कैम्फर ऑल्सो. सो यू कैन राइट ओनली 3. हाउ आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं? ओके, these are 3 uses of forest. Now number 4 is वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट होते हैं. हाउ आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ. यस, वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट कैसे है? वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? फॉरेस्ट में प्रिजर्व होती है, सुरक्षित रहती है. किसके थ्रू? नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरीज के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, कैसे इम्पोर्टेंट है ये? वाइल्ड लाइफ इज प्रिजर्व इन फॉरेस्ट. Okay,
wildlife is preserved in forest through national park and wildlife sanctuaries. ओके, सो वाइल्ड लाइफ के लिए जो फॉरेस्ट होते कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो प्रिजर्व रहती है फॉरेस्ट में थ्रू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू। और वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। यस, so students, now next is question number 5. What steps have been taken by our government to save the wildlife? ओके, वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप लिए गए? ओके, सो कौन से स्टेप लिए गए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ को? सो स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए कौन से स्टेप ली गई? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या किया हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया? वाइल्ड लाइफ को होम्स प्रोवाइड किया। और गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड homes to wild animals by building means निर्माण करके, बनवा करके, क्या बना करके? various national park, various means अलग अलग, various national park and wildlife sanctuaries। और जंगली अभयारण्य जो होते हैं बनवा करके और नेशनल पार्क बनवा करके क्या किया? एनिमल्स को होम प्रोवाइड किया। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया एनिमल्स को सेव करने के लिए? उनके लिए नेशनल पार्क बनवाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का बनवाया। ओके, सो दीज आर योर आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, योर बी एक्सरसाइज कंप्लीटेड। B exercise completed. Okay, now come on the next exercise C. C exercise is true and false. So your next exercise C is true and false. C, true and false. So first statement is state whether these statements are true or false. First statement is that evergreen forests are found in the areas with scanty rainfall. एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है। यस, सो क्या होगा जहाँ पे कम बारिश होती है? नो, सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो स्कैंटी मीन्स कम, न्यून। ओके, so second is the deciduous forests are also called monsoon forest. deciduous forest को मानसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो हमने इंडिया में भी पाए जाने फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में बताया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था? deciduous forest we can also say that monsoon forest. Okay, so it's a true statement. Next is number 3. Third is palm trees are found in coniferous forest. palm trees जो होते हैं वो कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? नो, सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाम फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाम ट्रीज जो होते हैं वो कॉनिफरस फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। ओके
Okay students, so this is it's a false statement. Now next is number 4. The thorn forest is also called desert forest. Thorn forest को हम desert forest के नाम से भी जानते हैं. Yes, so it's a true statement. Now next is number 5. थॉर्न फॉरेस्ट को हम डेजर्ट फॉरेस्ट को हम थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5. द सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सुंदरबन जो लार्जेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया का. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, सो व्हाट यू राइट हियर? फॉल्स. सो दीज आर योर ट्रू एंड फॉल्स. यू फिल इट इन योर book. Okay, and exercise A, choose the correct answer and fill in the blanks is also fill in your book. Okay, and B exercise, answer this question you do in your fair notebook. Okay students, now next is E. You come on the E exercise. आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करना है? पिक्चर्स, these pictures are given. Okay, and complete their names. See the pictures in your book on the page number 87. Okay, so trees pictures are given and their name. Okay, so first tree. See in your book first tree. So in first tree, front of in first tree there are right F. Okay, and two blanks are given. आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है करने को. तो क्या किसका ट्री दिया हुआ? फर्स्ट ट्री इज देवदार ट्री. तो उसको हम फिर बोलते हैं FIR फिर. ओके, इन द सेकंड यू कैन सी ये किसका ट्री दिया हुआ है स्टूडेंट? सेकंड पिक्चर देखिए आपकी बुक में. ये है डेट पाम. डेट पाम होता है खजूर. आप खजूर खाया होगा ना अपने पेट में, जिसे बोलते हो DATE सो आपको ये ब्लैंक करना है. ओके, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वहां पे वर्ड लिखना है, डेट पाम. इन द थर्ड पिक्चर्स सी विच ट्रीज विच इज दिस और नेम लिखा हुआ है. सो ये किसका पिक है? बैम्बू, बांस. सो BAM. ओके, बैम्बू मींस बांस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट दिया हुआ है EB ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक. ओके, 3 वर्ड लिखना है. तो ये इसका आर्मोस, ये एक आर्मोस ट्री है जिसका नेम होता है EBONY. इसको आर्मोस ट्री बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट ट्री किसका दिया हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ट्री आपके साल ट्री है. दिस इज अ साल ट्री, SAL. ट्री का नेम है साल ट्री. ओके, these are your exercise E. Identify these trees and complete their name. Okay, so you also do like this. Now students, in your book D exercise are given think and answer. आपको क्या करना? सोचना है D exercise को और आंसर देना है. Only verbally you can tell me the answer. Okay, so why do you think there is a need for national park and wildlife sanctuaries to save our life, so save our animals? Why do you think? आप क्यों सोचते हो कि यहाँ there is a need for national park, कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जरूरत है? किसके लिए? सेव आवर एनिमल्स. हमारे एनिमल्स को सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जरूरत है. क्यों जरूरत है? आप सब सोचेंगे क्यों जरूरत है. मैंने क्या बताया था? हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था? उनके लिए होम्स प्रोवाइड किया था. क्यों किया था? क्योंकि हमारे कुछ स्पीसीज जो होती है वो कैसे हो रही थी? वो ओवर होने की स्टेज पे थी ना. सो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया? उनके लिए होम्स प्रोवाइड किया. उनके लिए नेशनल पार्क बनवाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए. ओके, सो उनमें क्या होता है? इनमें एनिमल्स सेफ रहते हैं. ओके, उनको शिकार नहीं कर सकता. तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने. और आप भी क्या सोचते हो इसके बारे में? यू थिंक. ओके, एंड गिव मी द आंसर इन द डाउट क्लास. मैं आपसे पूछूंगी
आपको डाउट क्लास में इसका मुझे आंसर बताना। व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो, क्यों जरूरत है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क की। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ऑन ई एक्सरसाइज फिल इन योर बुक, A, C and E exercise fill in your book and B exercise do in your fair notebook. Answer these questions. Okay students, so your lesson completed. Now in the next class, from today's class, we start our revision work. We all know our post-term exam are coming, so for the exam we need to revision. So from tomorrow we start our revision work. Okay students, so see the video very carefully, okay, and come and join your live class.